دوستو، مسیحی لوگوں کی بڑی غلط فہمی پر آج ہم غور کریں گے۔ اکثر سننے میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسیحیوں پر جادو اثر نہیں کرتا، مسیحیوں کو نظر نہیں لگتی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اسرائیل پر افسون نہیں چلتا، اور وہ بڑے دلیر ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا اور نہ ہی ہوگا، کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ ابلیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمیں نظر بھی نہیں لگ سکتی، ہمیں عیدیں بھی نہیں منانے کی ضرورت، ہمیں نظریں نیازیں دینے کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں روزے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، جبکہ ایوب کی نظر، اگر آپ دیکھیں کہ ابلیس کی نظر جب ایوب پر پڑی تو اس نے اس کو چھیڑنے کے لیے خدا سے پرمیشن لے لی، اور مسیح خداوند نے پطرس کو کہا کہ اے پطرس، میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا، کیونکہ ابلیس نے تمہیں مانگ لیا ہے۔ ابلیس نے مقدسوں کے خاندانوں کو نشانہ بنا رکھا ہے، جبکہ ابلیس نے ہوا کو اپنے لیے استعمال کیا۔ وہ پہلی کریشن تھی، خدا نے اپنی چاہت و محبت سے ان کو بنایا۔ پھر ابلیس نے قائن کو ہابل کے خلاف استعمال کر لیا۔ ابلیس نے سانپ میں داخل ہو کر ہوا کو اپنے لیے استعمال کیا۔ ابلیس نے ہابل کو قائن کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ ابلیس نے پطرس میں داخل ہو کر خدا کے پروگرام کی مخالفت کی اور کہا کہ خدا نہ کرے کہ مسیح کے اوپر ایسے مشکل حالات ہوں۔ یہودا اسکریوتی کو مسیح کے خلاف استعمال کیا۔ بری نظر کا اثر، ابلیس کسی کی نظر کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ نظر کا مطلب دراصل کچھ اور ہے۔ نظر کو سمجھنے کے لیے اس پر دھیان دینا چاہیے کہ آخر نظر ہے کیا، جبکہ بابل کے لوگوں کو حزقیہ کی حکومت کے خلاف اس طرح سے استعمال کر لیا کہ اس نے جا کے آسانی کے ساتھ کہا کہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، اور یسایہ نبی نے آ کے اس کو کہا کہ اب یہ تیرے پاس نہیں رہے گا۔ ابلیس کا کام جو ہے وہ کسی کی بہن کو، کسی کی بیوی کو، کسی کی ماں کو، کسی کے بچوں کو، کسی کی خدمت کے خلاف، کسی کے بھائی کو، بیٹے کو، باپ یا رشتہ داروں کو استعمال کر لیتا ہے، کسی کی صحت کو خراب کر دیتا ہے، کسی کا روپیہ پیسہ خراب کر دیتا ہے۔ ان تمام کی مثال بائبل میں ملتی ہے۔ حنانیہ سفیرہ، بیوی کو ہسبینڈ کے ساتھ ملا لیا، ہوا اور آدم، ابراہیم اور سارہ، موسیٰ کی بیوی صفورہ، داؤد کی بیوی میکل، اور بھی بہت سے ہیں۔ نظر کا مطلب یہ نہیں کہ کسی پر ٹیلی پیتھی کی جاتی ہے، نظر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو دیکھتا ہے۔ اصل میں نظر کا مطلب ہی کچھ اور ہے۔ نظر کا مطلب ہوتا ہے حسد کرنا، نظر کا مطلب ہے ہائے ہائے کرنا، نظر کا مطلب ہے کسی پر توجہ دے دینا۔ اس کے حالات بڑے اچھے ہیں، اس کے بچے بڑے اچھے ہیں، اور یہ دعا کرنی چاہیے ہمیشہ کہ نظر بھلے انسان کی ہو یا خدا کی، محبت بھری ہو۔ اگر خدا کی نظر بھی کسی پر فوکس پہ آ جائے تو اس کے بھی پلے کچھ نہیں رہتا۔ آپ کو پتہ ہے ایوب کی کیا حالت ہے؟ ایوب بار بار کہتا ہے خدا اپنی نظر مجھ سے ہٹا لے، کیونکہ جب خدا کی نظر پڑی تو وہ محبت کی نظر نہیں تھی، وہ ٹیسٹ کی نظر ہو گئی، اور ابلیس نے مانگ لیا اور اس کا کیا حال کیا۔
इसी तरह अगर किसी इंसान की नज़र मोहब्बत बनी रहे तो वो फिर क्या कहता है कि जीता रहे, कितना खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है। और अगर किसी की हसद वाली नज़र होती है तो वो कहती है वो कहता है हाय बड़ी सोहनी लग रही, बहुत सोहनी गाड़ी है, बहुत अच्छा घर लिया है, हाय तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। भाई हाय हाय ना करो, इसकी जगह पे जैसे ही आप किसी के मुंह से ये सुनो हाय तो आप एकदम उसको कहो हाय नहीं बाजी, हालेलुया। क्योंकि हाले अयूब का ध्यान करो। जब अयूब की हालत पे नज़र पड़ी तो इब्लीस ने उसको मांग लिया। जब साउल पर नज़र पड़ी तो साउल का क्या हाल हुआ। जब एली कहन पर नज़र पड़ी, एली कहन का हाल क्या हुआ। सब के सब का हाल बेहाल हो गया। इंसान की नज़र, ज़रा देखिए, कायन की नज़र जब हाबल पर पड़ी तो वो हासद होकर उसने उसको कत्ल कर दिया। साउल की नज़र जब बादशाह के लिबास में बैठे हुए ने, उसकी ओहदा, उसका ताज, उसका तख्त, लेकिन जब दाऊद पर उसकी नज़र पड़ी तो उसको नेज़ा मारता है, चाहता है कि उसको मार दे। हसद की आग को लोग समझते नहीं, इसी को ही नज़र कहते हैं। यही है जब हसद की आग, मेरे बच्चों के पल्ले कुछ नहीं, मेरे बच्चे कामयाब नहीं हो रहे, मेरा हस्बैंड कामयाब नहीं हो रहा, या मैं कामयाब नहीं होती। कई दफ़ा बीवियां अपने शौहरों से हासद है, कई दफ़ा बाप अपने बेटों से हासद है, कई दफ़ा माँ अपनी बेटियों से हासद है, कई दफ़ा सारा ये सिस्टम बरादरी हासद है। और उसके बाद क्या होता है, जब उसी शख्स के कानों में ये बात पड़ती है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ऑफिस के लोग उसके खिलाफ हो गए, उसका कारोबार डाउन हो गया, उसका खामद उसके खिलाफ है, उसकी औलाद उनके हाथ में नहीं है, उसकी सेहत खराब हो गई है, उसके बाल गिरना शुरू हो गए, तो उनको बड़ी तसल्ली होती है कि चलो शुक्र है। नहीं तो कहते हैं तेरे बाल बड़े अच्छे हैं, बाद में पता चलता हो कि आगे से कह देती है एकदम से वो बहन या भाई, आजकल तो मेरे बाल गिर रहे हैं, अच्छा मेरे भी बाल गिरे हैं। ये हसद की आग है, यही नज़र है। इब्लीस फिर ऐसे शख्स को, ऐसी शख्सियत को इस्तेमाल करता है जिसके अंदर ये हसद होता है। जो ये इब्लीस एकदम से दाखिल नहीं होता, वो उसके असरात को लेता है। इंसान की हाय हाय जो करता फिरता है वो उसे पकड़ता है और फिर उसको कहता है आ इधर, मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, मैं इसका हादसा कराऊँगा, मैं इसका पेट ख़राब कर दूँगा, मैं इसके बाल गिरा दूँगा, मैं इसके लिए परेशानियाँ पैदा कर दूँगा। फिर एक दिन उस हासद के कानों में खबर पहुँच जाती है कि फ़लाँ का एक्सीडेंट हो गया, फ़लाँ की तलाक हो गई, फ़लाँ के बच्चे उसके खिलाफ हो गए। फिर उसको ठंड पड़ जाती है, फिर उसको तसल्ली हो जाती है। ख़ास बात पर गौर करें, मसीही कहते हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता, हम यीशु के लोग हैं। बाइबल में लिखा है कि इसराइल पर अफसून नहीं होता। तो गौर करने की बात है कि क्या आप इसराइली हैं? आप ईदें मनाते हैं? आप तो हुक्मों की भी परवाह नहीं करते, आप तो दायित्व की भी नहीं देते, आप तो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, आप चर्च जाने को भी लापरवाही में रखते हैं। जहां अगर आप तवज्जो करें तो चर्चेज में एक दूसरे से हसद चल रहा है। जहां खर्च की बात हो, जहां अमल की ज़रूरत हो, वहां पर तो आप मसीही बन के बैठ जाते हैं कि हम मसीही हैं, हम यहूदी नहीं हैं, हम क्यों ईदें मनाएं, हम क्यों दय यकी के पक्के हों, हम क्यों ये करें, हम क्यों वो करें। और जहां बरकत की बात हो वहां कह देते हैं हम जी वादे में शामिल हैं, हमारी खुदा हिफाजत करता है, हम बनी इसराइल के बारे में जानते हैं, हम उनकी जमात का हिस्सा हैं, उन पर अफसून नहीं चलता, उनको कुछ नहीं होता, उनके चगिर्द फरिश्तों ने बाड़ लगाई है। भाई आप किस गलत फहमी में हो?
आप किस तरह से हो, इसको गलत फहमी कहूँ या खुश फहमी कहूँ, आप ना उधर के हो ना उधर के। जहाँ बरकत की बात आ गई वहाँ पर हो गया आप मसीह के बनी इसराइल के साथ मिल गए। जहाँ पर अमल की बात आ गई वहाँ कह दिया नहीं जी हम नहीं करते। कभी कहा हम ईस्टर नहीं मनाते, कभी कह दिया हम क्रिसमस नहीं मनाते, कभी कह दिया हम ईदें नहीं मनाते, कभी हम मूसा की शरीयत से आज़ाद हैं, कभी हम ओ यहूदियों की बातों को नहीं परवाह करते, हम तो खुदा के लोग हैं, हम तो मसीह के लोग हैं। भाई मसीह के लोग हैं तो वो तो कबूतर वाली हालत है। बिल्ली के सामने बैठ के तो कहता है कि बिल्ली है ही नहीं, हालांकि उसको इस बात का इल्म नहीं कि बिल्ली के मुंह में उसका सर है, इस वजह से उसको बिल्ली नजर नहीं आ रही। आप दुनिया में रहते हुए हर तरह से उन हादसात का शिकार हो रहे हैं। नहीं मसीहों पर नहीं होता। ओ भाई वो निजात की बात है, जो मसीह के खून से निजात मिली है वो ईमान की सूरत में है। ना कुर्बानियों की ज़रूरत है, ना हदिये की, ना दायकी की, ना ईदों की, क्योंकि वो मसीह के खून से निजात मिली है। सिर्फ मसीह का खून हमें तमाम बातों से पाक करता है, आज़ाद करता है। वरना हसद मसीहों में भी बहुत है। हाय मेरा चर्च, हाय मेरा ख़ानदान, हाय मेरी बरकत, हाय मेरा कारोबार, अंदर ही अंदर कुटते रहते हैं। इतनी कड़वाहट है, इतनी बेचैनी है, यहाँ तक कि एक जमात दूसरी जमात, एक कलीसिया दूसरी कलीसिया के पास्टर के बारे में ऐबजोई करते हैं, ऐबगोई करते हैं, किरदार कुशी करते हैं, बुरी बातें कहना, हसद की आग में जलना, इसी को तो बुरी नज़र कहते हैं। और नहीं 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 मसीहों को नहीं होता। क्यों मसीहों को नहीं होता? शिगिर्दों पर हो रहा है, अयूब पर हो रहा है, सऊल बादशाह की बात है। मसीह खुदावंद से इतने यहूदी हासद थे कि मसीह खुदावंद को सलीब पर चढ़ा दिया। ये हसद की आग थी कि ये कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूं। ये हसद की आग है। जब बुरा हो जाए तो उस औरत या उस मर्द से पूछो जो हाय हाय कर रहा था कि किस तरह से उसके दिल में लड्डू फूटते हैं, किस तरह से उसके अंदर ठंड पड़ी है, क्योंकि वो खुद नालायक है, उसके बच्चे नालायक हैं। वो परेशान रहता है कि मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, क्योंकि यस्सु का खून सलीब पर बहा है। यस्सु की जात ने हसद नजर सह लिया है। लोग उस पर थूकते थे, लोग खुश हो रहे थे कि अब ये कहे कि मैं खुदा का बेटा हूं, अब ये कहे कि मैं कुछ चीज हूं, अब ये अपने आप को सलीब से नीचे उतारे। यकीन जानिए मेरे दोस्तों, यही बुरी नजर है। बुरी नजर, मसीह खुदावंद ने कहा जब तुम बुरी नजर से किसी को देखते हो तो ये दो इसके व्यू हैं। एक व्यू है बुरी नजर का, बदकारी की नजर, और बदकारी का जो असर है वो सेक्स से है। और एक बदकारी की नजर है बदकार, जहां पर भी बदी होती है, हसद की आग, बर्बादी की आग, तबाही की आग, किसी का बुरा चाहना, किसी की तरक्की से अंदर ही अंदर कुड़ते रहना, इसको कहते हैं नजर, इसको कहते हैं हसद, इसको कहते हैं बदी, इसको कहते हैं बुरी ख्वाहिश, लालच। तो इसलिए ये सारा कुछ, ये सारे हालात रसूलों पर भी आए, ये नबियों पर भी आए। सिर्फ और सिर्फ इस बुरी नजर का या हसद का या टेस्ट का निजात पर असर नहीं होता। निजात आपकी कायम है, बाकी सब के सब असर, सब के सब वायरस, सब के सब जरासीम, सब के सब बैक्टीरिया रसूलों पर भी आते हैं, रसूलों पर भी आए, नबियों पर भी आए,
खादमों पर भी आए और आज के ईमानदारों पर जो सिर्फ चर्च जाते हैं हफ्ते में एक बार और दावे करते हैं कि हम तो खुदा के बड़े स्पेशल हैं। स्पेशल तब बनेंगे, बनी इसराइल के साथ आप तब अपने आप को रिलेटेड कर सकते हैं, उनके साथ मिला सकते हैं, अगर आप तौरेत की बातों को भी, साहिफुल अंबिया को भी, ज़बूर को भी और शरीयत को भी सब को देखते हो कि जिस तरह से बनी इसराइल ने उन पर अमल करके बरकत पाई, नबियों ने बरकत पाई, यकूब ने बरकत पाई, इब्राहिम ने बरकत पाई, इसहाक ने बरकत पाई, मूसा को खुदा ने चुन लिया, सैमुअल को बरकत मिली, हन्ना को बरकत मिली, तो वो बरकतें मिली हैं उन बातों पर अमल करके, लेकिन असरात उन पर भी हुए। हन्ना के औलाद नहीं थी, फनिन्ना उसको तंज करती थी और हन्ना उसके बारे में सोचती थी और रोती थी। अब ये पॉजिटिव बात है, लेकिन खुदा की नज़र में फनिन्ना जो है वो फोकस हो गई, खुदा की नज़र उस पर आ गई और हन्ना की हाय हाय ने फनिन्ना के बच्चे मरने शुरू हो गए। हाय पादरी की हो या नबी की हो या रसूल की हो, हाय हाय ही है। इसलिए अगर आप चाहते हैं इस हाय से बचना, भले वो आपकी बहन है, माँ है, भाई है, बाप है, मासी है, मासड़ है, फुफ्फी है, फुफ्फड़ है, कोई भी है, जो हाय हाय करता है ना, उसको फौरन कहो कि हाय नहीं, हालेलुया। मुसलमानों के सामने जब कोई कहता है ना हाय ये तो बड़ी ऐसे, वो कहते हैं माशाल्लाह, और माशाल्लाह का मतलब है, माह का मतलब होता है क्या, और शाह का मतलब होता है बादशाह, और अल्लाह का मतलब होता है देवता। माशाल्लाह खुदा की तारीफ हो, अल्लाह की तारीफ हो, और हालेलुया का मतलब है खुदा की तारीफ हो। तो जो भी आइंदा से आपके सामने हाय करे उसको कहें मासी, फूफी, चाची, ताई, माँ जी, हाय नहीं, हालेलुया। और इस गलत फहमी से निकलें। नजात पर किसी की नज़र नहीं लगती, नजात पर किसी का हसद काम नहीं करता। नजात आपकी पक्की है, ये तौबा करो, बपतिस्मा लो, मसीह का इकरार करो, उसकी गवाही दो, नजात आपकी पक्की है। बाकी आप इस प्लेनेट पे रहते हैं, हर तरह के हाल अहवाल और जो हादसात हैं, जैसे सुलेमान बादशाह कहता है, सुलेमान नबी कहता है कि वही हालात ईमानदार पर हैं, वही हालात बेईमान पर हैं, एक ही तरह के हालात हैं। फ़र्क सिर्फ मसीहों में ये है कि वो मसीह के खून से ख़रीदे गए हैं। उन पर जादू भी चलता है, उन पर टूने भी चलते हैं, उनका जहन भी ख़राब होता है, वो डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं, वो पागल भी होते हैं, उनके कारोबार भी ख़राब होते हैं, उनकी बीवियां भी उनके ख़िलाफ़ होती हैं, उनके हस्बैंड भी उनके ख़िलाफ़ होते हैं, उनके बच्चे भी नशा करते हैं, उनके बच्चे भी घर छोड़ के चले जाते हैं, उनके बच्चों के भी हादसे होते हैं, उनके बच्चे भी बिफोर टाइम पैदा हो जाते हैं, उनके भी इसकात हो जाता है, उनमें भी भांज होती हैं, उनके भी बच्चे मिस कैरेज हो जाते हैं। ये सब कुछ एक ही तरह का है। इसलिए इस ज़हन से, इस सोच से निकलें, बाइबल पढ़ें और बाइबल की तालीम को अच्छी तरह से समझें। थायोलॉजी, थायो का इल्म है, खुदा जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे शीशे की तरह। उसका सूरज नेकों बदों दोनों पर चमकता है, उसकी बारिश नेकों बदों दोनों पर पड़ती है, और उसका सिस्टम इस दुनिया पर नेकों बदों दोनों पर है। इसलिए अगर चाहते हैं बचे रहो तो वो सारे काम जो बनी इसराइल करते रहे वो आप भी करें। नजरे न्याज़े क्यों 2 कुर्बानियां दी जाती थी? एक बकरा हैकल में और एक बकरा बियाबान में छोड़ा जाता था। एक अज़ाज़ील के लिए छोड़ा गया, एक खुदा के लिए। खुदा ने खुद कहा कि एक अज़ाज़ील के लिए दो, वरना खुदा को क्या पड़ी थी? खुदा ने क्यों कहा अज़ाज़ील को देना ज़रूरी है? पुराने वक्तों में लोग शादियां करते थे तो अपने घरों में वो जब बेटे या बेटी की शादी होती थी, एक देग पका के वो अज़ाज़ील को नहीं देते थे, लेकिन वो एक देग बांट देते थे ताकि कोई हाय ना करे,
کوئی یہ نہ کہے ہائے ہمیں تو بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا کھانا تھا۔ ہائے بھلے غریب کی ہو یا بھلے امیر کی ہو، ہائے ہائے ہی ہے، ہائے حسد ہے۔ اصل میں یہ حسد کا ہے، یہ حیا کی ہے نہیں، یہ ہیبرو کا لفظ ہے جو ہے اس کا نہیں، یہ حسد کا ہے جس پہ کہتے ہیں ہائے یہاں بے شادی ہو رہی ہے، ہائے یہاں پر حقیقہ ہو رہا ہے، ہائے یہاں اس کی منگنی ہو رہی ہے۔ اس لیے جو ہائے کرنے والے ہیں ان کے لیے لوگ پہلے دے دیتے تھے اس کو۔ جیسے بچہ کوئی ری کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کو پہلے دے دو، اس نے ہماری بھی محفل خراب کر دینی، اس نے روتے ہی رہنا ہے۔ اسی طرح کئی رشتہ داروں میں یہ پرابلم ہے، وہ ہائے ہائے ان کا اپریسیشن ہی ہائے سے شروع ہوتا، ہائے باجی، ہائے پاجی، ہائے سر جی، ان کی ہائے ہائے نہیں ختم ہوتی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ہائے کو جو ابلیس استعمال کرتا ہے، جیسے اس نے شیطان نے ایک دم سے سانپ کو استعمال کیا کیونکہ وہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے سول بادشاہ کو استعمال کیا داؤد کے خلاف، اس نے خاندانوں میں اندر آ کے استعمال کیا، بہت سارے لوگوں کی بات ہے۔ میں کس کا حوالہ دوں؟ اگر آپ چاہتے ہیں ان فردن تو میرے ساتھ رابطہ کریں، میں آپ کو اس کی پوری سٹڈی کروا دوں گا کہ یہ کس حد تک بنی اسرائیل میں حسد نے کیا تباہیاں کی، خاندانوں نے کس حد تک بربادیاں پیدا کی، کس حد تک کلیسیا خراب ہوئی، کس طرح خدا کی جماعت کے ٹکڑے ہو گئے، کس طرح خدا کی حکومت کے ٹکڑے ہو گئے، کس طرح آسمان کی بادشاہی میں ٹکڑے ہوئے۔ یہ سارا حسد ہے۔ ابلیس نے بھی حسد کیا۔ حسد کو تو نظر کہتے ہیں۔ اپنی وکیبلری بڑھائیں، اپنی پڑھائی کو بڑھائیں، اپنے پاس لفظوں کو اکٹھا کریں اور اس غلط فہمی سے، اس خوش فہمی سے باہر نکلیں کہ مسیحیوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ کیا وہ مسیحی نہیں تھے جن کے ساتھ ہوا، یا اب بھی جن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں، ہائے نہیں ہیلیلویا۔ ہائے جیسے ہی کو کہے ہائے، آپ ماشاءاللہ تو کہیں گے نہیں، کیونکہ یہ تو مسلمانوں کے لیے نام ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے، حالانکہ لینگویج تو لینگویج ہے۔ جتنی کم علمی ہوگی اسی طرح کہیں گے، جیسے مسلمان کہتے ہیں انگریزی کرسچنوں کی لینگویج ہے، اسی طرح یہ جو کرسچن ہے وہ کہتے ہیں جی عربی مسلمانوں کی لینگویج ہے۔ حالانکہ اتنے مسیحی ہیں عربستان میں، مصر میں، سیریا میں، سعودیہ میں، دبئی میں، مڈل ایسٹ میں اتنے مسیحی ہیں، تو وہ تو یہ لفظ نہیں استعمال کرتے جس پر آپ اٹکے ہوئے ہو۔ اپنے دماغ کو وسیع کرو اور غلط فہمی سے نکلو اور حاسدوں کا مقابلہ کرو اور حاسدوں کو نگاہ میں رکھو۔ جو ہائے ہائے کرتے ہیں ان کے لفظ کاٹو، ان کو فوراً کہو بہن جی ہائے نہیں ہیلیلویا، سسٹر جی اس طرح کی لینگویج ہائے ہوئے ہائے، اس طرح کی آواز کو ریبیوک کرو، ڈانٹو، انسلٹ کرو، اس کو ہٹ کرو تاکہ وہ آئندہ سے اس طرح کی لینگویج نہ استعمال کرے، اور دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اگر یہ نظر کسی پر بھی پڑ جائے، بھلے شاگردوں پر پڑ جائے، بھلے ایوب پر پڑ جائے، بھلے سول بادشاہ پر ہو، بھلے موسیٰ پر آ جائے، بھلے شاگردوں پر آ جائے، رگڑا سب کو لگ جاتا ہے۔ خوش فہمی میں نہ رہو، ہائے نہیں ہیلیلویا۔ خداوند آپ کو برکت دے، اس کلام کی سمجھ دے، اور اپنے دماغ کو کھلا کرو اور روٹین کی باتوں سے نکلو۔ جہاں پر خرچ ہوتا ہے خرچ کرو، جہاں پر محنت کرنی پڑتی ہے محنت کرو۔ عیدیں منانا ہے وہ یہودیوں کا کام ہے، کرسمس ہم نہیں مناتے، تو مناتے کیا ہو؟ عیدیں آپ نہیں مناتے، کرسمس آپ نہیں مناتے، ایسٹر کی آپ کو خوشی نہیں، دنیا خوش ہو رہی ہے، دنیا انجوائے کر رہی ہے، اور بہت سارے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کرسمس نہیں مناتے، اور بھائی ہم کرسمس ٹری نہیں لگاتے۔ بھائی آپ کو پتہ ہے کرسمس ٹری کا مطلب، میری سوچ میں، میرا جو خیال ہے، جو میرا ویو ہے، وہ عدن میں وعدہ ہوا تھا
जब हम एक ट्री को सजाते हैं तो ये अदन की मिसाल है कि ये क्राइस्ट जो है, क्राइस्ट का अदन में वादा किया गया था, ये वही है। ये ट्री हमें बताता है कि बाग में जो वादा खुदा ने किया अब उसकी पैदाइश हो रही है। ये अदन, ये बाग वाला बच्चा पैदा हो रहा है, ये बाग वाला बच्चा, बाग वाली ईद, बाग वाला अहद अब पूरा हो रहा है, इसलिए खुशी मनाते हैं। तो आप वो पंजाबी में कहते हैं आले वाला खत, वही एक चीज़ पड़ी है। हाँ, हम ये होगा तो ये होगा। हमारे घर में तो बिजली से सिर्फ पंखा ही चलता है। और भाई बिजली से पंखा नहीं चलता, बिजली से मोटरें भी चलती हैं, बिजली से बड़े बड़े जनरेटर चलते हैं, बिजली से बड़े बड़े प्लांट चल रहे हैं। और बहुत सारे मसीही हैं जिनका अभी तक उनकी बिजली से यही है, हम तो हमारी निजात नहीं, हम मसीही नहीं, हम तो क्रिसमस ट्री नहीं लगाते, क्योंकि लिखा है कि वो जो ट्री लगाते हैं कुर्बानगाह के पास। भाई तुमने कुर्बानगाह बनाई है, अपने घर में कुर्बानगाह बना के बैठे हो क्रिसमस ट्री का। या अपना कॉन्सेप्ट बदलो। ये अदन के निशानी है, ये बाग की निशानी है कि बाग में अहद हुआ था कि एक लड़का पैदा होगा जो औरत की नस्ल से होगा, और वो अबलीस के सर को कुचलेगा, क्योंकि अबलीस ने हवा को वर्ग लगाया था। अबलीस ने हवा की इस हरकत को, हसद को, क्योंकि वो हासद थी कि खुदा ने इस दरख्त को अपने लिए रखा हुआ है, हम खाएंगे, हम इसको खाएंगे, तो उसने खाया। तो इसलिए कहा गया कि अब पैदा होगा जो औरत की नस्ल से होगा और वो अबलीस का सर कुचलेगा। इसलिए अगर आप उसको मानते हो तो फिर निजात पर किसी का असर नहीं, निजात पर किसी की नजर नहीं लगती, निजात पर किसी का हसद नहीं, निजात पर किसी की हाय हाय नहीं। इसलिए खुशी मनाना सीखो, क्रिसमस मनाओ, ईस्टर मनाओ, ईदें मनाओ जो खुदा की हैं। 7 ईदें हैं जो खुदावंद ने भेजी, और 8वीं ईद है जो बागे अदन की ईद है, और यौम पुरीम है 7 और 8, और फिर 9वीं हनुका, और 10वीं अहद वाली वो हो गई बागे अदन वाली। 10 अहकाम हैं, 10 ईदें हैं, और 10 आपके हाथ की उंगलियां हैं। इनसे ताली बजाओ, खुशी से ललकारो, हाय हाय नहीं, हालेलुया। जय मसीह।